ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है सेक्शन 4(1) में, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुप्रिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है। और ये उन कानूनों के संबंध में है, वो इन्वेस्टिगेशन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंध रखती हो, क्योंकि विजिलेंस कमीशन का कोई मर्डर केस से संबंध नहीं होता, करप्शन केसेस से संबंध होता है। सो इन रिलेशन टू ऑल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेस, द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन इज विद द सीवीसी। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कौन करे, क्या होगा, किसको गवाह बनाना है, किसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी है, यह सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का अधिकार होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अधिकार होता है। यह अधिकार सीवीसी का नहीं होता। लेकिन इस सुपरिटेंडेंस प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो रहा है, यह पावर सीवीसी का है। और इसीलिए बड़े अधिकारियों ने भी सीवीसी को ही, जो उनकी कंप्लेंट्स आई, सीवीसी को ही गई। सीवीसी के पास वो सारा मटेरियल है जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे हैं। और कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी मीटिंग में सेक्शन 8 सीवीसी एक्ट और सेक्शन 4(1) ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत यह सिफारिश की कि इन आरोपों की जांच न तो ये दो अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पे स्वयं आरोप है, और न ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती है। इसलिए जब तक इसकी जांच होगी, टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द सीबीआई and in the interest of fairness, purely as an interim measure, they will sit out by going on leave for a certain period of time. It's an interim measure. And an SIT not functioning under either of these two officers will investigate the case. This is in accordance with the highest standards of fairness. Now, those in the opposition who are questioning this recommendation, do they want either of these two officers facing allegations to be the supervisory authority of the investigations which are investigating them? Nothing can be more unfair in the world than an accused being or a potential accused being or a person against whom an allegation is pending being in charge of the investigation or being a supervisory head of the agency which is investigating. This is an extraordinary situation, and the jurisdiction which has been vested by Parliament in the CVC of superintendence of investigative functions is not a power in futility. It's a power to maintain fairness of the investigation process, and therefore the government in exercise of powers under section 4(2), जैसे इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सीवीसी के पास है, अन्य विषयों का सुपरिटेंडेंस का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है, इट इज ओनली टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन
of the CVC. It is important for every person. And when I say every person, not only the government, not only the citizens of India, but also India's opposition. Also some PIL petitioners who are habitual in arguing these cases. Also some left-wing wire agencies. That fairness of our principal investigative agencies are maintained. And regarding the charge that you said 3 opposition parties have made, I regard this charge as a rubbish. And the fact that 3 opposition parties are saying, we know what the agency was going to do next, itself casts a serious doubt on the fairness process. And therefore the standards of fairness have to be higher. I don't believe what they have said is true, but if they are convinced what they have said is true, then did these opposition parties have access to what is going on in the mind of an individual in the CBI? That itself demolishes the integrity of the persons whom they are trying to support. I still believe that every person is entitled to the presumption of innocence. Therefore, we are not going to prejudge as to who is guilty, but we are committed to ensuring that India's investigation process does not become a mockery, as some officers who were in charge have attempted to do in the last few days. Therefore, it is important both for the CVC, both for the Government of India and for the whole country, that the integrity of India's investigation process is maintained. And to maintain that institutional integrity, the officers under a cloud must stand out for some time, purely as an interim measure. If they are innocent, they will come back. And an independent SIT will investigate as to what is the truth. I think that is a comprehensive reply, isn't it? Just one second. Well, these are, I have told you in the past, the questions which used to be asked in the 1970s. The crisis has arisen now, and therefore CVC made a recommendation now. देखिए, मैं कोर्ट की प्रक्रिया पे कोई कमेंट नहीं करूंगा. Well, I will not make any comment, but the CVC's recommendation and the government's action is intended to restore the institutional credibility and integrity of the CBI. And every Indian has an interest in it. Otherwise, if that institutional integrity is destroyed, the worst form of scamsters will stand to gain. One question here. Yeah. Just one second. When this SIT will be constituted? I think a remark of this quality doesn't even deserve a reply. Sir, when this SIT will be constituted and who will head this, sir? Well, the CBI will, it's now for the CBI to do it. The Government of India has nothing to do with it. CVC or CVC, sir? No? Well, CVC is the superintendent's authority, they will do it. I don't want to answer any question. Let us see it for them. Why should government enter? That means I am making the same mistake which the 3 opposition parties have done, that I know what is the SIT and so on. I don't know. जो उनकी फंक्शनिंग है, यहां वो कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन SIT करते हैं या इंडिपेंडेंट टीम बनाते हैं. It could be an independent team also, and therefore that is the authority of the CBI and whatever the CVC has recommended to them. That what is the urgency that you had to wake up the DOPT secretary and have this order passed at 2 o'clock in the morning? Well, I think your question runs contrary to the first question. Some friends have said that it was already too late. The answer is very obvious. The CVC met yesterday
They made a recommendation in the evening yesterday. So if the government is a fast-acting government, we call it why the hurry, and if it's a slow-acting government, we say policy paralysis. One last question on the subject, yes. The lady there. Sir, just repeat, you haven't answered. Sir, there are allegations that Rakesh Asthana is actually the blue-eyed boy of the Prime Minister's office, and that's one reason that the government really dragged its feet on it. And the direct allegations that he was... I think these make juicy stories for electronic media, but ultimately there is an Evidence Act which has stood the test of time for over 100 years. And therefore, whatever is the independent investigation, in a criminal case, the red eyes or the blue eyes don't matter. It's the quality of evidence that will matter. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. तो वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ तौर पर ये कहा, सरकार का पक्ष सामने रखा और ये कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है, केंद्र सरकार ने जो ये कदम उठाया इस पूरे घूसकांड को लेकर, ये पूरा सीवीसी की सिफारिशों पर उठाया गया ताकि सीबीआई की साख बची रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी बची रहे। हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़ चुके हैं कुमार सोनू, जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुमार, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीआई की साख बचाने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम था कि दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। देखिए, बिल्कुल ये सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन आया है सीबीआई में जो घमासान मचा हुआ है 2 अधिकारियों को लेकर। फिलहाल अभी तक कई ट्रांसफरों की लिस्ट सामने आ गई, लेकिन एक नई टीम जो है इसमें बनाई है राकेश अस्थाना वाले केस में, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी। सतीश डागर जो कि एसपी हैं सीबीआई में, और इन्होंने ही गुरु जो राम रहीम है उसको कन्विक्शन तक लेके गए थे। इसके अलावा वी मुर्गसेन है जो ज्वाइंट डायरेक्टर है, ये इन्होंने कोल स्कैम की में जांच की थी, और साथ ही साथ तरुण गाबा जो डीआईजी हैं व्यापम केस में इन्होंने जांच की थी। ये अब सब लोग जो है जो राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, उनके खिलाफ जो है जो जांच थी अब उस जांच का हिस्सा होंगे और ये जांच उसके खिलाफ जो है जांच करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से पहली बार पक्ष आया, क्योंकि एक आम धारणा भी हमारे देश में नहीं थी कि कहीं पे भी कुछ भी बात आती है और पुलिस पर अगर एक आम आदमी का विश्वास उठता है तो वो सीधा कहता है सरकार से कि सीबीआई की जांच की जाए। इस तरह का भरोसा एक आम आदमी का सीबीआई जैसी एजेंसी पर है। लेकिन जब सीबीआई के आला अधिकारियों के बीच में ही नंबर 1 और नंबर 2 बनने की होड़ लगी हो, भ्रष्टाचार जैसे आरोप लग रहे हो, तो कहीं ना कहीं सीबीआई की साख पर सवाल उठना लाजमी है। मैं एक चीज और आपको दिखाऊं, इस वक्त मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर हूं और ठीक मेन गेट की जो एंट्रेंस है वहां पर एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है कि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप इस मुख्यालय में अपनी शिकायत दे सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ नंबर भी लिखे हैं तो वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार ही सीबीआई के मुख्यालय में फैला हो और आरोप लग रहे हो स्पेशल डायरेक्टर पे और डायरेक्टर सीबीआई पर, तो उसकी जांच कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी ये साफ किया है कि सरकार इसकी जांच नहीं करेगी, सीवीसी के पास इसका पूरा अधिकार है और सीवीसी इसकी निष्पक्ष होकर जांच करे ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। जी ठीक है, सीबीआई मुख्यालय से लगातार हमें बता रहे हैं कुमार सोनू। और ये कुमार, ये बताइए कि अब आलोक वर्मा ने भी एक तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में वो आ गए हैं, वो सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मूव की है आलोक वर्मा जो डायरेक्टर सीबीआई हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई जो है वो शुक्रवार को करेगा। लेकिन फिलहाल जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे एम नागेश्वर राव, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है इंटरिम डायरेक्टर का, और आनन फानन में बहुत सारे तबादले जो हैं किए गए हैं। दिल्ली से बाहर अधिकारियों को भेजा गया है, और खासतौर पर अजय बस्सी जो कि अस्थाना केस के आईओ थे उनको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया है दिल्ली से, और दिल्ली से बाहर भी कुछ जो अधिकारी सीबीआई के तैनात थे उनको दिल्ली बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल जो है केंद्रीय जांच एजेंसी में किया गया है। फिलहाल लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, कौन क्या करेगा सबकी भूमिकाएं तय की जा रही है, और जल्द ही कुछ और चीजें भी जो है साफ हो सकती हैं। जी, एक छोटा सा सवाल कुमार यहाँ पर कि क्योंकि अरुण जेटली से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या सीबीआई के भीतर ही कोई एसआईटी बनाई गई है, क्योंकि नई जांच टीम जो आप बता रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो क्या ये एसआईटी बनाई गई है सीबीआई के भीतर जो जांच करेगी राकेश अस्थाना वाले मामले पर?
जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको नाम बताए, ये ही एक टीम है जो राकेश अस्थाना केस की अब जांच करेगी। मैं एक बार फिर आपको जो है दोहरा देता हूं, इसमें सतीश डागर हैं जो एसपी हैं सीबीआई के, ये इन्होंने गुरु राम रहीम का कन्विक्शन करवाया था। इसके साथ साथ वी मुर्गसेन हैं ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, ये कोल स्कैम की जांच से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तरुण गाबा डीआईजी हैं, ये व्यापम की जांच से जुड़े हुए हैं। ये तमाम अधिकारी जो हैं अब राकेश अस्थाना के खिलाफ जो जांच चल रही थी उसकी जांच करेंगे। जी ठीक है कुमार, सोनू बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर तफसील से बताने के लिए, और सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका धन्यवाद।